Hello, and welcome everyone to our LBNCC YouTube channel. LBNCC लखनऊ BSc नर्सिंग कोचिंग क्लासेस आप सभी के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड सीरीज रन कर रहा है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर होम्स. So let me just tell you, this is part 4B of the medical department, which we have uploaded earlier, but due to some reasons we have to withdraw that video. So we are today recreating the new video and uploading it today, right? So let's continue with this video, part 4B, medical department. Let's recall all the medical departments first of all. Okay, these we have divided on the category based on the core and the purpose of the departments, right? First is clinical and core medical departments: anatomy, physiology, biochemistry, pathology, microbiology, pharmacology, forensic medicine, community medicine, PSM, general medicine, and general surgery. Second category is the medicine related specialities like cardiology, neurology, gastroenterology, nephrology, and endocrinology, pulmonology, respiratory medicine, rheumatology. Okay, now comes the and mental health, that is psychiatry, neurology, and neurosurgery. Then comes the women and child health, in this obstetrics and gynecology, OBG, pediatrics, and neonatology. It's very important. You have to just recall all the departments properly, right? And pronunciation also should be good. Surgical and allied departments like orthopedics, ENT, ear, nose, and throat, ophthalmology, urology, plastic surgery, cardiothoracic surgery. Right? Now comes the डायग्नोस्टिक एंड द सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के. एंड दोज डिपार्टमेंट्स आर रेडियोलॉजी, बहुत कॉमन है, एक्सरे, CT, MRI, anesthesiology, nuclear medicine, blood bank and transfusion medicine, and clinical laboratory services. Okay, then comes the emergency and the critical care units, and that is emergency medicine, critical care, ICU, trauma care. And last are the preventive and alternative prevention, like okay, इसमें आता है आपका community health nursing, preventive and social medicine, Ayush, Ayurveda, Unani, Yoga, Siddha, and homeopathy. Okay, so these are all the medical departments which you have to study properly, right? You can take a screenshot, and I will also provide the this page in the DMs. Okay, so let's move to the question part now. Question number 9. Which department deals with the disease of the stomach and digestive system? कौन सा विभाग पेट और पाचन तंत्र की बीमारियों से संबंधित होता है? ऑप्शन ए ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी, या ऑप्शन डी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी. हमने इससे पहले भी बता रखा है आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड ओके होती हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, उसी से रिलेटेड गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो. Okay, so that is the correct answer is gastroenterology. See, this is the gastroenterology which deals with the treatment of the digestive system. Gastroenterology focuses on the stomach, intestine, liver, pancreas, and gallbladder diseases. Diseases like ulcer, hepatitis, gastritis, IBS, irritable bowel syndrome. Okay, and nurses has to monitor diet, hydration, and assists the endoscopy procedures. Gastroenterology पेट, आंत, यकृत और अग्नाशय की बीमारियों से जुड़ी शाखा है. नर्सें एंडोस्कोपी में सहायता करती हैं, डाइट चार्ट बनाए रखती हैं और पानी की मात्रा पर निगरानी रखती हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. डिपार्टमेंट ट्रीटिंग द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों का इलाज कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन ए साइकाइट्री, मनोरोग विभाग, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजी, नेत्र विभाग, ऑप्शन सी ENT, नाक कान गला, या ऑप्शन डी रेडियोलॉजी. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए साइकाइट्री, मनोरोग विभाग. Okay, C. Psychiatry focuses on the depression, anxiety, schizophrenia, and the mental illnesses. मनोरोग विभाग अवसाद, चिंता, schizophrenia आदि का इलाज करता है. मनोरोग विभाग बहुत ही, मैं आपको ये भी बता दूं कि मनोविज्ञान बहुत ही ज़्यादा अनरीच्ड क्लास है,
अनरिच डिपार्टमेंट है मेडिकल का। और कॉमन इंडियन लैंग्वेजेस में अगर हम इसको बोलें तो बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं कि इन सब के पीछे कुछ बायोलॉजिकल रीजन होते हैं डिप्रेशन में जाने के, एंजाइटी क्यों हो रही है, इन सब के पीछे बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं। ठीक है, सोशल रीजंस तो होते ही होते हैं बट बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, हम रिस्पॉन्स डिले कर रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का वो सब चीज़ें डिले हो रही हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, राइट। तो उस हर चीज़ पागलपन नहीं होती, ओके, क्योंकि मनोविज्ञान को हम लोग इसी से ज़्यादा जोड़ते हैं, लेमन लैंग्वेज इन द इंडिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड इन, महिला प्रजनन तंत्र की बीमारियों का इलाज किस विभाग में होता है? ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी हृदय विभाग, ऑप्शन बी गायनेकोलॉजी स्त्री रोग विभाग, ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी कैंसर विभाग, ऑप्शन डी ऑर्थोपेडिक्स हड्डी विभाग। इजी एंड सिंपल, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, महिला प्रजनन तंत्र, सिंपल है, स्त्री रोग विभाग होगा इसका, तो करेक्ट आंसर इज गायनेकोलॉजी। ओके, गायनेकोलॉजी स्त्री रोग विभाग, गायनेकोलॉजी मैनेजेस पीसीओएस, menstruation issues, infertility and pregnancy complication। स्त्री रोग विभाग पीसीओएस, मासिक धर्म समस्याएं और गर्भ धारण संबंधी समस्याओं का इलाज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द डिपार्टमेंट दैट हैंडल्स न्यू बॉर्न केयर इज, नवजात शिशु की देखभाल किस विभाग में की जाती है? ऑप्शन ए नियोनैटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी ईएनटी या ऑप्शन डी रेडियोलॉजी। The correct answer is option A, neonatology, नवजात विज्ञान। See, the neonatology provides critical care for the premature and the low birth weight babies। नवजात विभाग समय से पहले जन्मे और कमजोर शिशु की देखभाल करता है। Okay, so let's move to the next question. Question number 13. The department treating lung and respiratory disorders, फेफड़े और श्वसन तंत्र के रोगों का इलाज किस विभाग में होता है? ऑप्शन ए यूरोलॉजी, ऑप्शन बी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑप्शन सी पल्मोनोलॉजी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। Respiratory. Correct answer will be option C, pulmonology. See, pulmonology deals with the asthma, TB, tuberculosis, COPD and pneumonia। पल्मोनोलॉजी दमा, टीबी, निमोनिया और सीओपीडी जैसी बीमारियों का इलाज करता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन डिसऑर्डर्स, पेट और आंतों की बीमारियों का इलाज कौन करता है? ऑप्शन ए साइकाइट्री मनोरोग विभाग, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी हृदय विभाग, ऑप्शन सी ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विभाग, ऑप्शन बी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। Correct answer will be option D, gastroenterology. Gastroenterology handles ulcers, gastritis, IBS and liver diseases। Gastroenterology पेट, आंत, लीवर आदि की बीमारियों का इलाज करता है। So the correct answer will be the gastroenterology. Okay. Now question number 15. The department responsible for X-ray, CT, MRI, X-ray, CT, MRI के लिए किस विभाग में किए जाते हैं? ऑप्शन ए सर्जरी, ऑप्शन बी रेडियोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑप्थेल्मोलॉजी। अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था इस पे। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी रेडियोलॉजी, राइट। सी, रेडियोलॉजी परफॉर्म्स इमेजिंग ऑफ द डायग्नोसिस एंड गाइडिंग ट्रीटमेंट। रेडियोलॉजी जांच और उपचार हेतु इमेजिंग करता है। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो सेंटर में है दैट इज आई गेस एक्सरे है, एंड ये आपका एमआरआई है जिसमें हम ब्रेन का करते हैं। मेजरली ब्रेन के लिए सबसे पॉपुलर एमआरआई होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, क्वेश्चन नंबर 16, ईयर नोज एंड थ्रोट डिजीजेस आर ट्रीटेड इन, कान नाक और गले के रोगों का इलाज किस विभाग में होता है? ऑप्शन ए ईएनटी, ऑप्शन बी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्थोपेडिक्स या ऑप्शन डी साइकाइट्री। इजी है, इसके नेम में ही इसका फुल फॉर्म छुपा हुआ है, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, यही फुल फॉर्म है ईएनटी का। ओके, सी, ईएनटी ट्रीट्स साइनसाइटिस,
tonsillitis, ear infections, and hearing issues. ENT विभाग साइनस, टॉन्सिल्स एंड कान की बीमारियों का इलाज करता है. So that's for today. Thanks for joining LBNCC and the Nursing Aptitude series. For more such information, you can contact us on 945478 5219. Thank you.